Hello everyone. In the last class we discussed about the exponents and powers. Okay, I just gave you the introduction about it. So today we will be doing some good questions on exponents and powers. So the first question is, you have to simplify 3 by 4 to the power 5 whole to the power 4 divided by 3 by 4 to the power 20. ओके तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट ये वाला सॉल्व करना है. ओके, तो सी हियर दिस इज़ a टू द पावर m टू द पावर n. तो इसका क्या हो जाएगा? a m n. राइट, मीन्स ये जो दोनों पावर हैं ये क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. दिस विल बिकम 3 by 4. राइट, 5 4s are 20 divided by 3 by 4 20. Okay, then we will be using this law, a by b to the power m is what? A to the power m by b to the power m. So this here we will get 3 to the power 20 by 4 to the power 20 divided by 3 to the power 4, 3 to the power 20 and 4 to the power 20. ओके ना. तो यानी कि ये देखिए दोनों की दोनों पावर्स हमने इस फॉर्म में चेंज कर दी. नेक्स्ट इज नाउ हियर इट इज़ डिवाइड. सो व्हाट विल हैपन? दिस विल रिमेन एज इट इज़ एंड देन इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. ओके, बिकॉज रेसिप्रोकल हम किसका करते हैं? बाद वाले का. डू रिमेंबर, रेसिप्रोकल हमेशा इसका होता है. ठीक है ना, कभी भी आगे वाले का नहीं करना है, उससे आपका आंसर जो है वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. एंड दिस डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई एंड दिस विल बिकम 4 to the power 20 by 3 to the power 20. राइट नाउ अब देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे? 3 to the power इसको 20 को एक साथ लेंगे. पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. मीन्स इसको ऐसे ले आते हैं. ठीक है, या तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्टली 1, लेकिन हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर में तो वी शुड यूज़ लॉज. ठीक है ना, फॉर द कैंसिलेशन. सो इट विल बिकम व्हाट? 3 to the power 20 minus 20 multiply by 4 to the power 20 minus 20. ठीक है, 20 minus 20 is what? 0. And this is what? 0. Now anything raised to the power 0 is what? 1. So this will be 1 multiplied by 1 which is equal to 1. Okay, by this law. Okay now. हेयर ऑल्सो यू कैन राइट. कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, कौन सी लॉ यूज़ करी है? विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड? a to the power minus n is equals to 1 by an. ठीक है, पहले हमने ये लगाया एंड देन वी हैव यूज्ड a to the power m dot a to the power n which becomes a to the power m plus n. ठीक है, so we get the answer as 1. okay, next question देखिए, second part. a by 9 by 16 to the power 3 multiply by 9 by 16 to the power 4 curly braces and then divide 9 by 16 to the power 7. ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू बॉडमास क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो हम पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो हियर वी विल गेट व्हाट? 9 to the power 3 by 16 to the power 3 multiply 9 to the power 4 by 16 to the power 4 divided 9 by 16 to the power 7.
ओके ना, यहाँ पे हम ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी, दैट a by b to the power m becomes a by b, a to the power m, b to the power m. This we have used here. Next is what? Next, see, a to the power m multiply a to the power n. ठीक है, a to the power m multiply a to the power n is what? a to the power m plus n. So we will get here 9 3 plus 4 by 16 3 plus 4, and also I have written that 9 by 16 to the power 7 becomes 9 by 7 to the 16 power 7. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9 to the power 7 by 16 to the power 7. Okay, and here it will become multiply, this will be reciprocate to become 16 by 7 to the power 9 by 7. ओके, मीन्स अब देखिए आप फिर से हमें यही सिचुएशन मिल गई, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, और दिस विल बिकम 9 to the power 7 minus 7 multiply 16 to the power 7 minus 7, and this will become 9 to the power 0 multiply 16 to the power 0. This will be 1 multiply 1 is 1, so the answer is 1 only. Okay, and here we have used what? a to the power 0 becomes 1. ठीक है ना? Okay, here is the next type. 6 by 7 to the power 0 plus minus 5 by 7 to the power 0 minus 3 by 10 to the power 0. ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा है कि a to the power 0 should be equal to 1. ओके, मतलब ये होना चाहिए, बस ये a जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब इंटीजर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर है, अगर ये भी है तो क्या हो गया, राइट? हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1 + 1 - 1. ओके, दिस विल बिकम 2 - 1, दैट इज 1. ओके, नेक्स्ट इज सी, दिस इज a to the power -n. इस टाइप का ही तो दिया है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सा लॉ इसमें यूज़ होगा. मीन्स आपको देख के पता चलना चाहिए यार इसमें ये लॉ यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 by a to the power n. सो हेयर इट विल बिकम 1 by 5 minus 1 by 10. देन अगेन इनवर्स. ओके, मीन्स इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको फिर से क्या करना है, ऐसे चेंज करना है. ठीक है, दिस माइनस बेसिकली मीन्स द इनवर्स, राइट? Then 5 and 10 का LCM is 10. 5 2 × 10 - 1 to the power -1. This becomes 1 by 10 to the power -1. ठीक है, तो अब आपको इसका इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल करना है, तो आंसर विल बी व्हाट, 10. ओके, now next question is 8 to the power 6 multiply 5 to the power 9 multiply 7 to the power 4 multiply m to the power 6 divided by 2 to the power 16 multiply 10 to the power 7 multiply 14 to the power 3 multiply m to the power 8. ठीक है ना, तो देखिए अब आप यहाँ पे m है, यहाँ पे मतलब एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को तो हम एज इट इज़ लेके चल सकते हैं, राइट? नाउ अब देखिए यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट प्राइम देख रहे हैं अब 2 5 7. ठीक है, तीनों के तीनों है यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे कहीं और तो दिख नहीं रहे. ठीक है, तो और हमें इसे सिंप्लीफाई भी करना है, तो व्हाट वी विल सी कि जो ये बाकी नंबर्स है ना, ये इनमें से क्या ये जनरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. ठीक है, तो देखिए 10 में से हो सकता है 2 × 5, 14 में से भी हो सकता है 2 7 × 14. सो ओके ना, और देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 3, राइट? देखिए 2 × 2 × 2, 2 2 × 4 2 × 8, तो यानी कि हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस बिकम्स 2 to the power 3 to the power 6 multiply 5 to the power 9 multiply 7 to the power 4 multiply m by 6 by
2 to the power 16 multiply 2 multiply 5 to the power 7 multiply 2 multiply by 7 to the power 3 multiply m to the power 8. ओके, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. नेक्स्ट अब हमें इसे अरेंज करना है. ओके, सी 2 दिस इज़ व्हाट मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू द पावर m टू द पावर n. क्या हो जाता है, पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई. 6 3 is 18, right? Then this will become 5 to the power 9 multiply 7 to the power 4 multiply m to the power 6, and this will be 2 to the power 16 as it is. This will become what, a multiply by b to the power m. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a to the power m multiply b to the power m. This will become 2 power 7 multiply 5 to the power 7 multiply 2 to the power 3 multiply 7 to the power 3 multiply m to the power 8. ओके, अब आप क्या करेंगे, सारी पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे एक साथ. ठीक है ना, तो यहाँ पे तो देखिए ये ऐसे ही रहेगा. न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज़. डिनोमिनेटर में देखिए आप 2 की पावर को सबको कलेक्ट करेंगे एक साथ, राइट. अब आप यहाँ पे देखिए ये 7 है, 3 है, 10 हो गया प्लस 16 26 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई m टू द पावर 8. ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 18 और m टू द पावर 6 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 5 की पावर्स और 7 की पावर को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे. ठीक है, तो दिस बिकम्स 5 टू द पावर 9 माइनस 7 एंड हियर इट विल बी 7 टू द पावर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 26 माइनस 18 मल्टीप्लाई m टू द पावर 8 माइनस 6. ठीक है, here we will get 5 to the power 2 multiply 7 की power 1 by 2 to the power 8 multiply m to the power 2. ठीक है, तो this becomes 25. this will be 7 by, देखिए 2 to the power 7 is 128. okay, then this will become 256 multiply m square. Okay, then 25 sevens is 175 by 256 m square. ठीक है, तो यहाँ तक आप जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव हेयर ऑल्सो. ओके, here comes one question. Find x so that 3 by 5 to the power 3 multiply 3 by 5 to the power minus 5 is equal to 3 by 5 to the power 2x minus 4. Very simple. ओके ना, देखिए a to the power m, this is what, a to the power m multiply a to the power n, which will become a to the power m plus n, right. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 by 5 to the power 3 plus minus 5 and 3 by 5 to the power 2x minus 4. ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट, 3 by 5 to the power, this will become 3 minus 5 and here we will get 3 by 5 to the power 2x minus 4. Then 3 by 5 to the power 3 minus 5 is what, minus 2 is equal to 3 by 5 to the power 2x minus 4. ठीक है, अब देखिए a to the power m is equal to a to the power n. अगर ऐसा होता है, this implies कि m is equal to n. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, this implies minus 2 is equal to 2x minus 4. okay, then this 4 will come here, minus 2 plus 4 is equal to 2x and we will get 2 equals to 2x, and then what, x is equal to 2 by 2, this will become 1. so x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1. ओके,
See the next question. By what number should 4 by 7 to the power minus 4 be multiplied so that the product is 7 by 4 to the power 5? ओके तो हमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 4 बाय 7 टू द पावर माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ये मिल जाए, राइट। तो पहले तो हमें नंबर नहीं पता, लेट द नंबर बी x। ओके, लेट द नंबर बी x। अब देखिए हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 बाय 7 टू द पावर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस x से, ताकि मुझे 7 बाय 4 टू द पावर 5 मिल जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 7 बाय 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 बाय 7 टू द पावर माइनस 4। ओके, here a by b to the power m will be 7 by 7 की पावर 5 by 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर माइनस 4 by 7 की पावर माइनस 4। ओके, देन यहाँ पे डिवाइड है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 by 5 7 to the power 5 4 to the power 5 मल्टीप्लाई 7 to the power माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 to the power माइनस 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n, दिस विल बिकम व्हाट, a to the power this m plus n 4 to the power m plus n, so here we will get 7 by 4। okay, this is the last question for today. You have to simplify this expression, ठीक है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए उसमें भी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, तो हम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स a टू द पावर m टू द पावर n इज a m n, राइट। तो दिस विल बिकम 4 by 5 to the power 3 4s are 12, so here we get 12 and the other thing as it is। okay, now what we will do is, let's apply this first, a to the power m by b to the power m, so this will become 4 to the power 12 by 5 to the power 12 divided 5 to the power minus 3 by 4 to the power minus 3। ओके, और हम इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 1 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, और या तो फिर हम इसको पहले रेसिप्रोकेट करके फिर लगा सकते हैं। तो दिस विल बिकम व्हाट, 3 टू द पावर 4। समझ आया आपको ये कैसे हुआ? हमने क्या किया, इसका माइनस था तो रेसिप्रोकल करा और पावर हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस का क्या है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट हेयर इट इज़ डिवाइड, तो वी विल चेंज इट इनटू द मल्टीप्लाई साइन। 4 बाय 4 की पावर 12 बाय 5 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर माइनस 3 बाय 5 टू द पावर माइनस 3। other will remain as it is। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगी, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n विल बिकम a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। दिस विल बिकम 4 टू द पावर 12 माइनस 3 बाय 5 टू द पावर 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 4। then we will get 4 to the power 9 by 5 to the power 9 multiplied 3 to the power 4 multiplied 9 to the power 4, so this will become 4 by 5 to the power 9, okay, multiply 3 to the power 4 and then you can see it can be what, 3 square to the power 4, ठीक है। this will become then 4 by 5 to the power 9 multiply 3 to the power 4 multiply 4 to the 8, then we will get 4 by 5 to the power 9
3 to the power 8, and this is what? 8 plus 4, 12. Okay, so finally we get the answer here. Okay, now we can leave it here also. I hope कि आपको ये समझ आए होंगे. And still, if you have some doubts, you can comment in the comment box. If you like the video, press the like button and share the video.